Dear students, let's continue with the parts of a cell. We have studied till now that the cell is a structural and functional unit of the living organisms. Now we will study about the parts of cells. First of all, let's know about the protoplasm. What is protoplasm? Protoplasm is the area, all that which is present inside the cell membrane, or you say plasma membrane. So this complete structure present inside the cell is the living protoplasm, which is surrounded by the cell membrane. The protoplasm consists of cytoplasm and nucleus. So you can see in the middle nucleus, and surrounding the nucleus it is the cytoplasm. So you can see everything which is surrounded by cell membrane is the protoplasm. Cytoplasm contains a number of structures which are called cell organelles. Cell organelles, they are present in the cytoplasm. So organelles, they are the structures within a cell that helps to perform the relevant functions. This we will study later on. अभी पढ़ेंगे इसमें. आगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं. सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज देयर प्लांट सेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज. तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे. नाउ द सेल membrane, plasma membrane. It is the outer boundary of the cell. It surrounds its inner gel-like material called protoplasm. So cytoplasm is it's a gel-like material, or you can say protoplasm, including nucleus. It contains the gel-like material. Plasma membrane का रोल क्या है? It controls the entry and exit of the substances as per the requirement of the cells. Entry and exit means only the specified substances will be allowed to enter or exit. ये नहीं है कि कुछ भी सेल के अंदर आ सकता है, कुछ भी बाहर निकल जाएगा, ये नहीं. Only the selected material. Therefore, it is called semi-permeable membrane. हर कुछ नहीं चला जाएगा, only the selected material. Now, the cell of the plants, fungi and bacteria have an additional outer covering called cell wall. Animal cells में नहीं होती है cell wall. Plants में, fungi and bacteria में cell wall हो सकती है. And the role क्या होगा cell wall का? What is the role of cell wall? It is the covering of the plant cells. It provides rigidity and protection to the cells. क्योंकि हार्ड होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, तो इट provides protection to the cells against the environment, variation in the environment. It also gives a definite shape, size and support to the cell. Now cytoplasm अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया is the cytoplasm. The portion of the protoplasm lying inner to the cell membrane के अंदर but outside the nuclear membrane is called the cytoplasm. Cytoplasm generally derived from the word kaitos, hollow. Plasma means liquid, and cyto generally also means cell. The plasma fluid, jelly-like substance present inside the cell is the cytoplasm. Cytoplasm को आप ग्राउंड सब्सटेंस बोल सकते हैं. ग्राउंड जहाँ सेल की सारी एक्टिविटीज़ होनी है, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं. उनको स्पेस चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ जगह चाहिए है पोजीशन के लिए. तो therefore you can call cytoplasm as the ground substance. तो इसमें है क्या साइटोप्लाज्म में? सेल ऑर्गेनेल्स तो हैं, एयर में तो नहीं है, उस लिक्विड में है, जेली लाइक सब्सटेंस में है. तो किसका बना है वो साइटोप्लाज्म? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स हो सकते हैं, along with a large proportion of water. All these components work together to provide a unique living nature to the protoplasm. So cytoplasm is important as it gives space for various cell organelles. Now let us see about the nucleus. Very important cell organelle. Important cell organelle सबसे बड़ा है. It is located in the center of the cell. पर कुछ केसेस में what happens, it may also occupy peripheral positions. Peripheral means साइड में चला जाएगा थोड़ा. Why? जैसे प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स they are larger in size as compared to animal cells. तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस साइड में चला जाता है थोड़ा, पेरिफेरी की तरफ को. It controls all the activities of the cell. This is important role of the nucleus. जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ है, एक्चुअली इसमें जीन्स प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स, और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग all kinds of cellular activities. So nucleus है क्या? It's a dense structure. It is covered by a nuclear membrane. इसका डायग्राम हम देखेंगे. We'll study it. भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. In short, you'll see here. The protoplasm of the nucleus is called nucleoplasm. न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं. देखो, साइटोप्लाज्म था न्यूक्लियस के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर. न्यूक्लियोप्लाज्म होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर. जो स्पेस है, जो ग्राउंड सब्सटेंस हुआ न्यूक्लियस का, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्रोमेटिन मटेरियल होगा. सो व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल? इट इज ए जेनेटिक मटेरियल. Chromatin is a genetic material. When the cell is ready to divide, this chromatin condenses to form thicker thread-like structures called chromosomes. The same chromatin word is the chromosome. किसके लिए दिए हैं ये words? Genetic material के लिए. When the genetic material is long, thin, thread-like, it is called chromatin. और जब सेल डिवाइड करता है, सेल भी डिवाइड करते हैं. एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, पर जब गैमेट्स बनते हैं तो एक सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 4 सेल्स में डिवाइड होता है. तो उस समय डिवीजन से पहले क्रोमेटिन जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें थिक नज़र आते हैं थ्रेड्स. तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रोमोसोम. पर जो बॉडी में हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वर्किंग सेल्स हैं, जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उस समय आप जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन कहेंगे. बट व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, बाकी और कोई काम नहीं कर रहा है सेल, तो उस समय जेनेटिक मटेरियल का नाम हो गया क्रोमोसोम. These chromosomes are the structures responsible for the characters. यानी क्रोमोसोम contains genes, और ये genes are responsible for the characters of the organisms. जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या क्या कैसे बॉडी बननी है, क्या कलर होगा, क्या हाइट होगी, क्या बनेगा, प्लांट है, एनिमल है, या कोई और ऑर्गेनिज्म है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जीन्स. और जीन्स जो हैं ये इनहेरिट होती हैं, मीन्स ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, बच्चों में.
फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इनहेरिट होती हैं ये जीन्स। तो जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। एक एक क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं, 50, 100, 200 जीन्स एक एक क्रोमोसोम में हो सकती हैं। और ये क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम को ही डीएनए कहते हैं। सपोज जैसे ही आप इसमें देखिए टेबल बना हुआ है, ह्यूमन बीइंग हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन इट्स सेल। तो इसका मतलब 46 जो नंबर है, ये 46 क्रोमेटिन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और जब सेल डिवाइड करेगा तो यही 46 जो है शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे, तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। फिर इसी को अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 ही डीएनए है। ठीक है, डीएनए के मॉलिक्यूल कितने होंगे हमारे हर सेल में? 46 होंगे। और हर डीएनए मॉलिक्यूल में बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं जो कि हमारे बॉडी के मॉर्फोलॉजी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और क्रोमोसोम नंबर जो हैं ये हमारे बॉडी के हर सेल में 46 ही होते हैं, चाहे WBCs हैं, चाहे एपिडर्मल सेल्स हैं, चाहे बोन सेल है, मसल सेल है, नर्व सेल है, जिसका भी न्यूक्लियस होगा किसी भी सेल का हमारी बॉडी में, सब में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ईच। और एक ही जैसी जीन्स होती हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेल कहाँ पर लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का फंक्शन होता है, वो जीन्स काम करती हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म में आप देखिए कि डॉग की बॉडी में 78 सेल्स हैं, पिजन में 80 हैं, ईस्ट में 32 हैं, वीट की बॉडी में 42 क्रोमोसोम्स हैं हर सेल में। जैसे वीट में बात करें, चाहे रूट सेल है, चाहे स्टेम सेल है, चाहे लीफ का सेल है, हर सेल में 42 क्रोमोसोम्स ही होंगे। Now, many small organisms, many small living structures are present in the cell. Living structures present हैं सेल में, जिसको सेल ऑर्गेनेलीज बोल रहे हैं। उसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं। बॉडी एक यूनिट है, एक सिंगल है बॉडी ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं। जैसे लंग्स हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, हार्ट सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है। उसी तरह से हर सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। क्योंकि सिंगल सेल भी तो ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल जैसे अमीबा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो सारे काम खुद ही करता है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। ठीक, तो सेल अपने आप में एक कंप्लीट हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं उसको, बिकॉज सेल कंटेन्स ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आवर बॉडी परफॉर्म्स एज ए होल। तो in general you see the cell contains cell organelles which are responsible for various functions of the cell। तो सेल ऑर्गेनेलीज हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप ये इनको रिवाइज करिए और इनको लर्न कर लीजिए, क्रोमोसोम नंबर्स जो 5 ऑर्गेनिजम्स में यहाँ लिखे हुए हैं। एंड विल कंटिन्यू विद द सेल organelles।